Hello students, this is a fill in the blanks question, and in this question it is given that silver chloride is sparingly soluble in water because its lattice energy is greater than sparingly soluble means very less soluble. So the answer would be lattice energy is greater than hydration energy, right? Hydration energy. So first of all, let me explain you that what are this lattice energy, what are this hydration energy. So let me write down here lattice energy, right? So lattice energy can be defined as the energy required to convert 1 mole of an ionic solid into gaseous ionic constituents. For example, suppose we have a solid AB, right? And it will get converted into A plus to B minus. So lattice energy is the energy which is required to break this AB, means to break this 1 mole of AB into its constituent ions A plus and B minus. Okay, so this is the lattice energy. And what is hydration energy? Let me write down here hydration energy. So hydration energy is the amount of energy which is released when 1 mole of ions undergo hydration. For example, here in the case of this AB ion, suppose this A plus and B minus. Now what happens actually, H2O gets attract toward this A plus and B minus, and whatever the heat release due to this interaction is the hydration energy, right? So whatever the heat release due to this attraction of ions and water molecule is hydration energy. So what happens, this H2O gets attract toward this A plus, so this become like this because oxygen have lone pair, so this lone pair gets attracted toward A plus. So we can write down that this A plus will get surrounded with this H2O, and in the B minus side we have hydrogen which is attracted towards the B minus because due to electronegativity of oxygen there is some plus delta partial positive charge generates on hydrogen, so it will be look like this, right? So now what happens when lattice energy will be greater than the hydration energy? That means this AB doesn't get break into this A plus and B minus, right? So the molecule will be sparingly soluble because if it doesn't dissociate into A plus and B minus, then also the water molecules doesn't get attracted towards them. So in the case of lattice energy is greater than hydration energy, our solid is sparingly soluble, or we can say almost insoluble. And when this lattice energy is lower than the hydration energy, then our solid will be soluble in the solvent like water, ethanol and all. So let me tell you that this AgCl is almost insoluble in water, alcohol and dilute acid because its lattice energy is greater than the hydration energy. So the answer of this question will be hydration energy. Thank you. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट एज ए पॉजिटिव आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड आल्सो एज ए नेगेटिव आयन इन बेसिक सॉल्यूशन इज सेड टू बी। मीन्स हमसे पूछा गया है सिंपल भाषा में कि भाई कौन कौन से उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं जो हम एसिड भी बोल सकते हैं उन एलिमेंट्स को, और हम उन एलिमेंट्स को बेस भी बोल सकते हैं। मीन्स वो दोनों तरह का काम कर सकते हैं एसिड और बेस का। तो जैसा कि हम जानते हैं ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। सो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। जो कंपाउंड्स एसिड भी हो सकते हैं बेस भी हो सकते हैं उनको अपन बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4 नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा। मींस HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। सो जैसा कि हम जानते हैं अगर हमने कोई एसिड लिया है HA तो वो डिसोसिएट होगा वो H प्लस प्लस A नेगेटिव में। सो
ये एसिड है तो हमारा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा ए नेगेटिव, इसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। सो कॉन्जुगेट बेस हम फिर कैसे बनाते हैं, मीन्स कोई एसिड दिया है तो उसमें से एक H प्लस आयन निकाल के हमारा कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। सो इस क्वेश्चन में अपन को दिया गया है कि HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। सो HSO4 नेगेटिव जब डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव में। तो इधर देख रहे हैं कि जो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा HSO4 नेगेटिव के लिए वो हो जाएगा SO4 2 माइनस, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। थैंक यू। Hello everyone. So the question is the solubility of sodium hydroxide increases with increase in temperature, right? So it is saying that the solubility of sodium hydroxide, that is our NaOH, right? NaOH, its solubility increase with increase in temperature. So whether we have to say whether this statement is true or false, right? So we can say that the solubility of sodium hydroxide decreases, right? Decreases with increase in temperature. So first of all we can say that solubility of NaOH, right, it decreases with when temperature increases. Why? Because at equilibrium constant of an exothermic reaction, if we talk about let's say Kc of an exothermic reaction, we have reaction is exothermic. So its equilibrium constant, it decreases with increase in temperature, right? It is inversely proportional. So due to this, we can say that less heat is produced in the reaction and the effect of increased temperature is nullified. So we can say that this statement is false, right? So this is our required answer. Thank you. इस क्वेश्चन में हमको एक स्टेटमेंट गिवन है, वो स्टेटमेंट है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अ लुईस एसिड बट इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। सो जैसा कि हम जानते हैं लुईस एसिड कौन होते हैं, लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मींस उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं जिससे कि वो स्टेबल कंपाउंड बना सकें। तो जैसा कि हम जानते हैं जो AlCl3 होता है, AlCl3 forms 3 bond and hence outer shell has 6 electrons, means जो AlCl3 वो 3 बॉन्ड बना रहा है, Al 2 क्लोरीन के साथ ये और एक Cl इधर, मीन्स जो एल्यूमिनियम के पास है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। नाउ जो एल्यूमिनियम नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। सो इलेक्ट्रॉन जो एल्यूमिनियम है 2 मोर इलेक्ट्रॉन चाहेगा, 2 more electrons to complete its octet, 2 more electron. So by definition those which accept electrons are called Lewis acid। तो हमारा जो AlCl3 है लुईस एसिड हो जाएगा, बट ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सो जो हमारे स्टेटमेंट दे रखा है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। थैंक यू। Hey guys, क्वेश्चन ये है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX, जिसका कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, इज 10 टाइम्स मोलर देन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड HY, इसका कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर है। अगर ये कह रहा है कि लैम्डा नोट x इक्वल्स टू लैम्डा नोट y, तो डिफरेंस इन देयर pK वैल्यूज विल बी pKa 4x माइनस pKa 4y क्या होगा। और ये हमें कंसिडर करना है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दोनों एसिड की लेस देन 1 है। सो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम एसिड HX के साथ स्टार्ट करते हैं। ये वीक एसिड है, सो दिस विल गिव H प्लस प्लस X माइनस। सो इनिशियली ये C था, ये नील थे, सो दिस विल बी इसका अल्फा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये C अल्फा और C अल्फा हो जाएगा। सो इसका Ka होगा, Ka विल बी C अल्फा इंटू C अल्फा बाई C 1 माइनस अल्फा, दैट विल बी C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बताई है कि यहाँ पे अल्फा इज लेस देन 1, सो ये फैक्टर नेग्लिजिबल हो जाएगा।
सो हमारे पास के की वैल्यू आ गई। सो के की वैल्यू आ गई सी अल्फा स्क्वायर। अब हमें पता है कि अल्फा क्या होता है। अल्फा होता है लेमडा बाई लेमडा नोट। सो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं एक्स की, और ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज 10 टाइम्स स्मॉलर, मतलब कि लेमडा 2 इज लेमडा 1 इंटू 10 टाइम्स। ये रिलेशन हमें पता है। सो अब हम लिखते हैं के ए और एच एक्स होगा सी अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे सी इंटू अल्फा की वैल्यू होगी लेमडा बाई लेमडा नोट है, तो ये होगा लेमडा 1 बाई लेमडा 1 नोट। ये हमारे पास एच एक्स के लिए इसकी वैल्यू आ गई है। अब और एच वाई के ए की वैल्यू आएगी सी अल्फा स्क्वायर, तो सिमिलरली इसके लिए लिख सकते हैं हम अल्फा होगा लेमडा 2 बाई लेमडा 2 नोट का होल स्क्वायर। सो अब हम लिख सकते हैं कि k2 बाई k1 विल बी c इंटू k2 की वैल्यू क्या थी लेमडा 2 बाई लेमडा 2 नोट होल स्क्वायर, और c इंटू k1 की वैल्यू थी लेमडा 1 बाई लेमडा 1 नोट होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा, सो इन दोनों के लिए ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि लेमडा नोट एक्स इक्वल्स टू लेमडा नोट वाई। सो हमें पता है अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ लेमडा नोट एच एक्स इक्वल्स टू लेमडा नोट एच प्लस प्लस लेमडा नोट एक्स माइनस। सिमिलरली लेमडा नोट एच वाई इक्वल्स टू लेमडा नोट एच प्लस प्लस लेमडा नोट वाई माइनस। और ये इंफॉर्मेशन हमें पता है कि लेमडा नोट एक्स माइनस इक्वल्स टू लेमडा नोट वाई माइनस। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। सो वी कैन राइट दैट लेमडा नोट एच एक्स इक्वल्स टू लेमडा नोट एच वाई, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। सो k2 बाई k1 का फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे C2 बाई C1। सो देयर वाज लिटिल बिट एरर, यहाँ पे इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं है। दिस इज C2 एंड दिस इज C1। ये आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। देखो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन 0.01 है और इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है। यू नीड टू टेक दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज इनटू अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, दीज आर द कंसंट्रेशन। सो ये होगा, हो जाएगा हमारे पास इनटू लेमडा 2 बाई लेमडा 1 होल स्क्वायर। बाकी चीज़ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि वो दोनों की लेमडा नोट बराबर है जैसे कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। सो वैल्यू है C2 की 0.1 बाई 0.01 इंटू, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक और प्रोवाइडेड है कि लेमडा 2 इक्वल्स टू लेमडा 1 इंटू 10। सो लेमडा 2 कैन बी रिटन एज लेमडा 1 इंटू 10 और ये लेमडा 1 हो गया। सो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 10 टू द पावर +3। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ k2 बाई k1 10 टू द पावर 3। अब इसका क्या करना है हमें, नाउ वी विल टेक माइनस लॉग ऑफ दिस, तो हमें मिलेगा माइनस लॉग k2 माइनस माइनस लॉग k1 इक्वल्स टू
माइनस log 10⁻³ तो ये हो जाएगा, हमें पता है कि pKa होता है माइनस log Ka, सो दिस विल बी pKa2 माइनस pKa1 इक्वल्स टू -3। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे। pKa1 माइनस pKa2 पूछा गया था हमसे, सो वो हो जाएगा pKa1 माइनस pKa2 हो जाएगा +3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सोल्यूशन में।